class, what we studied about the DRR, we studied that DRR is created before the redemption gets starts, and when you are doing the redemption out of the profit. So every year a company is required to transfer a adequate amount in the DRR account until the redemption is completed. And then we saw that the DRR, where it is recorded in the liability side, it is recorded in the liability side under the head reserves and surplus. Now, see, the best source for the redemption is always when it is carried out of the profits. Okay. So, and another thing which you needs to keep in your mind is that minimum 25% of the nominal value, that is a face value of a debentures, must be transferred to the special account known as a debenture redemption reserve account before the commencement of the redemption process. Now, for example, आपके debentures है 5 लाख रुपीस के, तो 5 लाख का 25% कितना हो जाएगा? Yes, that much of amount you have to transfer in the DRR account, that is a debenture redemption reserve account. ठीक है? Now, companies rule क्या कहता है कि everyone can create a DRR but except two companies. Now, कौन कौन सी कंपनीज है जिनको एग्जाम्पशन मिला है, जो नहीं कर सकते हैं? तो सबसे पहला है डिबेंचर्स इश्यूड बाय अ बैंकिंग कंपनीज. ठीक है, इफ तो अगर बैंकिंग कंपनीज है तो बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट. सेकेंड इज डिबेंचर्स विच आर इश्यूड बाय All India financial institutes which are been regulated by RBI. All India financial institutes, that is AIFI, इनको भी redemption reserve बनाने की जरूरत नहीं है. They are been exempted from creating DRR. ठीक है. Even now when it comes to a banking, even if the debentures are issued by a non-banking financial companies which are been registered by the RBI on the private placement basis, even unko bhi zarurat nahi hai. The third one, you can add the third point over here, that if the debentures are issued by non-banking financial institutes, non-banking financial institutes कौन-कौन से आ जाएंगे? LIC हो गया, UTI हो गया, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है विथ आरबीआई ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, इवन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डीआरआर. नाउ व्हाट इज अनदर थिंग व्हिच यू नीड टू नो इज दैट द अमाउंट जो भी हम क्रेडिट करेंगे डीआरआर अकाउंट में, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस रिडम्पशन ओनली. आप अमाउंट को सिर्फ यूटिलाइज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिडम्पशन, सारा प्रोसेस जैसे हो गया एंड ऑल ऑफ अस जितने भी डिबेंचर्स थे, सारे डिबेंचर्स अगर रिडीम हो गए, तो दिस डीआरआर अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट इनटू द जनरल रिजर्व. Do please, this is very important sentence and please write it down, the sentence that DRR account is closed by transferring the amount in the general reserve account. कंप्लीशन होने के बाद बैलेंसिंग फिगर को आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है. ठीक है. कंपनीज एक्ट भी हमें यही कहती है कि सारी कंपनी को डीआरआर बनाना कंपलसरी है एंड मिनिमम मतलब एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 25% तो होना चाहिए. सेबी क्या बोलती है? 25 भी नहीं, वो 50% होना चाहिए. पर हमें कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है कि नहीं, अब 25% ऑफ द अमाउंट जो भी आपका डिबेंचर का नॉमिनल वैल्यू जो भी होगा डिबेंचर का, उसका ही आप क्रिएट करो. और अगर आपको चाहिए कि नहीं नहीं मुझे इससे ज्यादा अमाउंट का ये करना है, डीआरआर बना के रखना है, तो इवन द अप टू 100% ऑल्सो इट इज अलाउड. जितने के डिबेंचर्स है आप पूरा का पूरा भी डीआरआर में उतना पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हो. तो इवन 100% ऑल्सो इज बीन अलाउड बाय द कंपनी. Then whatever we have discussed this, that we have written it down कि वो कौन से हेड में जाता है. और फिर मैंने जो अभी तुम लोगों को बताया कि डीआरआर इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट इन द
जनरल रिजर्व, एंड उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग दिस इन द जनरल रिजर्व अकाउंट. So just write down the entry as well. Now, there should be a minimum DRR investment as well. Every year, the company is required to create a DRR and it shall be before 30th of April each year. इधर आप डिपॉजिट करो या तो इन्वेस्ट करो एटलीस्ट 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर जो मैच्योर हो रहे ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st ऑफ मार्च, आपको उसका 15% का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा. और वो भी इन्वेस्टमेंट का बिफोर द मैच्योरिटी, दैट इज द ईयर एंड 31st ऑफ मार्च. और डीआरआर कब क्रिएट कर देना चाहिए, डीआरआर शेल बी क्रिएटेड बिफोर 30th ऑफ द अप्रैल एवरी ईयर.